Okay, so hello everyone. I just hope that I'm audible and everything is visible to you. And I just hope that I'm audible also. Can someone like write it down in the chat window and let me know that whether I'm audible or not? Hello Naresh, good evening. Am I audible? Hello Naresh, am I audible? Is my voice good enough? Hello Sakshi, am I audible? Okay, fine. If I'm audible, and how is the audio? Clear na? So, is there like any kind of noise or is it like clear enough? Okay, if it is clear, we can get started. Fine. So today will be actually like although in data structures we need to like get started with this thing. I was thinking of starting with discussing about time complexity questions and then moving over to stacks and linked lists. But I just thought that I'll cover up more important topics first, and then probably after that I'll jump over to other, I mean simpler topics. So I just wanted to start off with the trees and heaps. So we'll try to discuss majorly trees today, and tomorrow we'll be getting done with the heaps as well. Fine. So our target for the two classes would be to cover tree and heaps in whole. Fine. So that we can like give one class to stacks linked lists and one class to graphs. Fine. So to start with, because it is actually a crash course class, so we'll be like going in a relatively faster way. So what is actually what is actually a tree? So a tree is nothing but it is actually a kind of a connected graph only, in which there are n nodes. If there are n nodes, then there would be n minus 1 nodes. So in this particular thing there are 1 2 3 4 5 6. So there are 6 nodes. So there are going to be 5 edges, 1 2 3 4 and 5, and also I need to make sure that I make this graph connected. Fine. So that I can reach from any particular node to any other node. Fine. So in this particular case this can be termed as a tree, but in this particular case this is actually an undirected graph. If I am having a directed graph now, so I'll just go ahead and probably make directed edges. Okay, so it's not like very clear. I'll erase it once and then I'll start off again. So let's say we are having 1 2 3 4 5. Fine. And because there are 1 2 3 4 5 nodes, so we'll be having at most n minus 1 number of edges. So very important thing to note down is that in a graph with n nodes there are n minus 1 number of edges, and that particular graph which is connected also becomes a tree. So 1 edge, 2 edge, 3 edge, and let's make it 4 edges. So now we are having 4 edges, and this is also weakly connected. So there is a concept of weakly connected and strongly connected. Probably will not discuss that particular term over here, and we'll discuss strongly connected and weakly connected in graphs. But you can simply take it as that it is actually a kind of a connected graph, because if you remove the direction of the edges तो आप किसी भी एक नोड से दूसरी नोड तक पहुंच सकते हो, राइट. तो ये कनेक्टेड ग्राफ लग रहा है और इसके अंदर n माइनस 1 नंबर ऑफ एजेस है, मतलब 4 एजेस है. तो क्योंकि एक ग्राफ के अंदर 4 एजेस है, एक ग्राफ जिसके अंदर 5 नोड्स है और उसके अंदर 4 एजेस है, इसलिए मैं इसको ट्री भी कह सकता हूँ. फाइन. नाउ कमिंग ओवर टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हाइट ऑफ अ नोड क्या होती है. ओके, सो वॉल्यूम इज़ वेरी लो, निधि वॉज सेइंग. Should I like try to increase my volume? I'll just increase my input level and see if there is any, I mean, so how's the voice now? I just hope that it is much more, I mean, clear now, because I've increased the input level now. Okay, so now continuing with the concepts.
So what is a height of a node? A height of a node is the maximum distance of the node n from its leaf node. So first of all, what is a root node and what is a leaf node? So a root node is जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा, और एक लीफ नोड होता है जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता. नाउ व्हाट इज अ रूट नोड, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय अ पेरेंट? सो फॉर दिस पर्टिकुलर नोड इसका ये पेरेंट नोड है. फाइन, बिकॉज इसमें ये इनका जो एक पॉइंटर है वो उसके अंदर ये वाली नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, राइट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर नोड दिस इज़ अ पेरेंट नोड. अब ये वाली पर्टिकुलर नोड का देखो अगर आप, तो ये वाली नोड का कोई भी पेरेंट नहीं है. ये वाली नोड का भी ये पेरेंट है, ये वाली नोड का भी ये पेरेंट है, इस वाली नोड के लिए भी ये पेरेंट है, और इस वाली नोड के लिए भी ये पेरेंट है, राइट. बट इस वाली पर्टिकुलर नोड के लिए का कोई भी पेरेंट नहीं है, तो ये बन जाएगा मेरा रूट नोड. फाइन. और लीफ नोड क्या होता है? जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता. सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज़ अ लीफ नोड एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लीफ नोड. फाइन, बिकॉज इनका कोई चिल्ड्रन नहीं, चाइल्ड नहीं है. फाइन. सो नाउ व्हाट डू आई मीन बाय a height of a node? So let's name all our nodes. So this is A node, B node, this is C node, this is D node, and this is E node. Fine. So now what is the height of any node? So I am not saying, अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि इस पूरे ट्री की क्या हाइट है. मैं अभी सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई मेरे से पूछे कि लेट्स से कि मुझे बता दो कि हाइट ऑफ ई नोड क्या है, तो हाइट क्या होती है कि जितने भी आप लीफ नोड्स पर पहुंच सकते हो ना एक नोड से, तो आप ई से सिर्फ डी तक ही पहुंच सकते हो, राइट. डी ही एक ऐसा लीफ नोड है जहां पर आप पहुंच सकते हो. तो जितने भी लीफ नोड से आप मतलब जितने भी एक नोड से आप लीफ नोड्स तक पहुंच सकते हो, उनका मैक्सिमम डिस्टेंस ले लो आप. तो ई से तो डी में कितना डिस्टेंस है? 1 और 2. फाइन. तो ई की हाइट कितनी हो गई? 2 ही हुई. बट इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ रूट नोड, लेट्स से ए, तो ए की कितने लीफ नोड से कनेक्टेड है? ए से हम डी तक भी जा सकते हैं विच इज़ अ लीफ नोड, और ए से हम बी तक भी जा सकते हैं विच इज़ ऑल्सो अ लीफ नोड. बट ए से अगर हमें डी तक जाना है तो 1, 2 एंड 3 डिस्टेंस हो गया, राइट. बट और अगर मुझे ए से बी तक जाना तो ए की डिस्टेंस हुआ. तो इनमें से मैं मैक्सिमम ले लूँगा कि ए से मैं डी तक जा सकता हूँ 3 डिस्टेंस पे, मतलब 3 स्टेप्स में, और ए से मैं बी पर जा सकता हूँ एक ही स्टेप में. तो मुझे इनका मैक्सिमम जो भी होगा वो ले लेना है. तो हाइट ऑफ ए बन गया 3 और हाइट ऑफ ई बन गया 2. तो इसी तरह मैं अपने सारे नोड्स की हाइट निकाल सकता हूँ, राइट. तो इसी तरीके से मैं अपने सारे नोड्स की हाइट निकाल सकता हूँ. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ ट्री, देन द हाइट ऑफ अ ट्री इज़ जो भी रूट की हाइट है, जो भी रूट नोड होगा उसकी जो भी हाइट होगी वो पूरे ट्री की हाइट होगी. तो इस केस में हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री, सो हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री इज़ हाइट ऑफ रूट नोड ए. फाइन. So height of this particular tree is the height of root node A. Now what is the depth of अब हमने हाइट के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब हम डेप्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. डेप्थ क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी नोड की डेप्थ निकालनी है तो बस मैं उसका रूट नोड से डिस्टेंस निकाल लूँगा. तो अगर मेरे से कोई पूछे कि डेप्थ कितनी है बी नोड की, तो मैं देखूंगा कि वो रूट नोड से कितना दूर है. रूट नोड से ये एक ही डिस्टेंस पे दूर है, एक ही स्टेप पे है, तो 1 हो गई इसकी डेप्थ. और अगर मेरे से कोई पूछे कि सी की कितनी डेप्थ है, तो मैं देखूंगा कि वो रूट नोड से कितना दूर है. तो सी की डेप्थ हो गई 1 और 2, तो सी की डेप्थ हो गई 2. और इसी तरीके से मैं किसी भी नोड की डेप्थ निकाल सकता हूँ. फाइन. तो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ अ ट्री नाउ? व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ अ ट्री? तो आप जितने भी आपके लीफ नोड्स हैं सबकी डेप्थ निकाल लो, जो भी मैक्सिमम होंगी ना उन सारे लीफ नोड्स में से डेप्थ. तो इस केस में बी भी एक लीफ नोड है और डी भी एक लीफ नोड है, राइट. तो हमने ये पता है हमें कि डेप्थ ऑफ बी इज़ 1. नाउ व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ डी नोड? व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ डी नोड? Depth of D node is 1,
2 एंड 3। वो डी कितना दूर है ए से, 3 स्टेप्स की दूरी पर है, तो इसलिए डेप्थ ऑफ डी हो गई 3। तो अब इन दोनों में से अगर मेरे को चूज़ करके फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कौन सा, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर, राइट। तो पूरे ट्री की डेप्थ कितनी हो गई, 3। फाइन। सो इफ़ समवन आस्क यू कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ अ ट्री, तो आप जितने भी लीफ नोड्स हैं सबकी डेप्थ निकाल लो और जो भी मैक्सिमम होगा उसमें से वो आंसर होगा। फाइन। अब वो ये होता है कि हाइट ऑफ अ ट्री इज़ एक्चुअली इक्वल टू द हाइट द डेप्थ ऑफ अ ट्री। फाइन। ये हमेशा आपको जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट हमेशा मिलेगा। फाइन। तो हाइट ऑफ अ ट्री इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ अ ट्री। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है जो कि मैं पहले 5-10 मिनट में कवर अप करना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द साइज ऑफ अ ट्री? साइज ऑफ अ ट्री इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। सो इस पर्टिकुलर केस में 5 नोड्स हैं, तो इसकी साइज़ कितना हो गया, 5। सो द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री इज़ 5। फाइन। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी ईजी थिंग। तो बस मैं बेसिक डेफिनेशंस एक बार आपसे डिस्कस करना चाहता था। हाँ, प्लीज़ सो अजकोत नरूला वॉज सेइंग कि आप हाइट दोबारा से डिस्कस कीजिए। तो व्हाट डू आई मीन बाय हाइट इज़ कि अगर मुझे किसी भी नोड की हाइट निकालनी, सो आई विल जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। तो अगर मुझे किसी भी कोई भी मुझे अगर एक ट्री दे रखा है, कोई भी ट्री हो सकता है, तो अगर मुझे किसी भी नोड की हाइट निकालनी है, तो लेट्स से कि मुझे इसकी हाइट निकालनी है, तो जितने भी लीफ नोड्स है जो इससे रीचेबल है, लेट्स से कि इससे रीचेबल है, अभी तो इससे यही वाला लीफ नोड रीचेबल है, तो जितने भी लीफ नोड रीचेबल होंगे उनका मैक्सिमम, उनमें से मैक्सिमम डिस्टेंस। सो अगर मैं देखूं, अगर मुझे इस नोड की हाइट निकालनी है, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट दी हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, तो मुझे पता है कि मैं इस नोड से 2 लीफ नोड्स पर जा सकता हूँ। कौन कौन सी वो 2 लीफ नोड्स है? एक ये और एक ये। फाइन। अब यहाँ से ये वाली लीफ नोड तक का डिस्टेंस है 1 और यहाँ से ये वाली लीफ नोड का डिस्टेंस है 2। तो जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना, वो उस नोड की हाइट बन जाएगी। सो इफ़ आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो कि मतलब बहुत ही ईजी भी हो सकता है, आई एम नॉट रियली श्योर। सो दिस इज़ माई रूट नोड ए। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नोड ए, तो व्हाट वुड इट बी? तो हाइट ऑफ ए होगी जो भी मैक्सिमम लीफ मतलब डिस्टेंस दिख रहा है आपको लीफ नोड से, तो 1 2 3, ये वाली लीफ नोड का डिस्टेंस है 3, ये वाली लीफ नोड का डिस्टेंस है सिर्फ 2 और ये वाली लीफ नोड का डिस्टेंस है सिर्फ 2। तो यही होगी। फाइन, क्योंकि यही मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो हाइट ऑफ ए इज़ 3। और व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस होल ट्री? द हाइट ऑफ दिस होल ट्री इज़ द हाइट ऑफ रूट नोड। तो रूट नोड क्या है मेरी? ए ही है। तो हाइट ऑफ दिस ट्री बिकम्स द हाइट ऑफ रूट नोड विच इज़ 3। फाइन। सो ये मतलब इसे कहते हैं हाइट, और ये बेसिक जो टर्म्स हैं वो। और रूट नोड आपको पता है, जिसका कोई पेरेंट नहीं होगा तो वो रूट नोड, जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा वो लीफ नोड। फाइन। नाउ व्हाट इज़ अ केयरी ट्री? नाउ जितने भी मेरे ट्रीज़ होते हैं ना, उनको मैं बाइनरी ट्रीज़ भी होते हैं मेरे, टर्नरी ट्रीज़ भी होते हैं। फाइन। तो उनको मैं एक अगर मैं जनरल वे में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि केयरी ट्रीज़ है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ के ओवर हेयर? कि एटमोस्ट उसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? अ ट्री विद एवरी नोड हैविंग एटमोस्ट के नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर कोई एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर हर एक नोड के एटमोस्ट के नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो मतलब जैसे ये वाला अगर मैं ट्री लूँ तो इसके अंदर ये वाले नोड के सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, और कोई भी मेरे को ऐसा नोड नहीं दिख रहा जिसके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो, तो ये बाइनरी ट्री हो गया। फाइन।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 2 3 4 फाइन, और ऐसे ही मैं एक सैम्पल सा बाकी सा ट्री बना लूँ, तो अगर मैं ये वाला 1 2 3 4 5, तो अगर मैं ये वाले पर्टिकुलर ट्री की बात करूं तो ये कौन सा ट्री है? दिस इज़ अ 5-ary ट्री. वाई इज़ इट अ 5-ary ट्री? बिकॉज मैक्सिमम जो चिल्ड्रन है किसी नोड के वो 5 है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाली जो नोड है इसके 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5. So I can term this whole tree as 5-ary tree. So if I have to define it, so a k-ary tree is a tree in which every node is having at most k number of children. कि ज़्यादा से ज़्यादा k number of children हो सकते हैं, बट उससे या तो कम ही होंगे या तो उतने ही होंगे, बट उससे मतलब ज़्यादा k number of children से कभी ज़्यादा नहीं होंगे. तो अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि बाइनरी ट्री का मतलब है. सो इफ़ आई हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री, तो आप खुद भी दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि अ बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री in which every node is having at most 2 number of children. Fine. A binary tree is a tree in which every node is having at most 2 number of children. So if I have to define what is a ternary tree, what is a ternary tree? So a ternary tree is a tree in which every node can have at most, I'm defining the uppermost thing, कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे हो सकते हैं, 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. मिनिमम चाहे उसके 0 हो, 1 हो, 2 हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, बट मैक्सिमम बाइनरी ट्री में 2 ही हो सकते हैं, टर्नरी ट्री में 3 ही हो सकते हैं, 5-ary ट्री में 5 मैक्सिमम हो सकते हैं. सो इसके बेसिस पे हम k-ary ट्री को एक जनरल डेफिनेशन दे देते हैं. फाइन. सो नाउ अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज़ पे. तो जनरली जो है वो 4 तरीके की ट्रीज़ है, तो उन 4 तरीके की ट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और हर बुक में, ऑनलाइन में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और जितने भी टर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं. तो जैसे कि फुल k-ary ट्री अगर मैं बोलूँ या फिर फुल बाइनरी ट्री बोलूँ, तो उसकी आपको कहीं पर कुछ और डेफिनेशन मिलेगी, कहीं पर कुछ और मिलेगी. बट जो भी जनरल, जहाँ मतलब जो भी मेजॉरिटी जगह पे डेफिनेशन यूज़ की गई है, मैंने उसी को पिक किया है. और अगर कुछ एम्बिग्विटी होती भी है तो वो आपको पेपर में क्वेश्चन के अंदर वो देंगे, जबकि ऐसे एम्बिग्विटी मैंने कभी देखी नहीं. बट फिर भी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑनलाइन देख कर कि ऑनलाइन कहीं और डेफिनेशन कुछ और दे रखी है. सो इसलिए आप अगर इसको भी फॉलो करोगे तो आपको मतलब कुछ दिक्कत नहीं आएगी. फाइन. सो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि स्क्यू ट्रीज़ क्या होते हैं. स्क्यू ट्रीज़ होते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ कि एक स्क्यू ट्री होता है जिसके अंदर हर एक नोड का सिर्फ एक ही बच्चा होता है, कि मतलब एक ही चाइल्ड हो सकता है, हर एक नोड का एक ही चाइल्ड हो सकता है. फाइन. सो दिस इज़ अ स्क्यू ट्री. Fine, because this node is also having only one child, this node is also having only one child, this is also having only one child. तो ये स्क्यू ट्री हो गया जिसके अंदर हर एक नोड का या तो एक होगा चाइल्ड या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला ऐसा चाइल्ड निकला, मतलब ये वाला ऐसा नोड निकला जिसका कोई भी मतलब चिल्ड्रन है ही नहीं, चाइल्ड है ही नहीं. सो नाउ वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू नोट इन स्क्यू ट्रीज which you might have got it by now is कि उसके अंदर एक ही लीफ नोड होता है. फाइन. और बाकी ट्रीज़ के अंदर तो मल्टीपल लीफ नोड्स देखे होंगे आप, मतलब देखी है, हमने ऑब्जर्व किए हैं. और रूट नोड तो हमेशा ही एक ही होता है, और स्क्यू ट्री के अंदर लीफ नोड भी एक ही होगा. फाइन. सो ये एक चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट जो आपकी नोट कर सकते हो. वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप बहुत ही ईजी ऑब्जर्वेशन है, आप खुद भी लगा सकते हो, बट पेपर में कभी बार सीधा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली मतलब आप सीधा ठीक कर दो. सो नाउ मूविंग ओवर टू आफ्टर स्क्यू ट्रीज, आई वांट टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ व्हाट आर स्ट्रिक्ट k-ary ट्रीज. सो नाउ व्हाट आर स्ट्रिक्ट k-ary ट्रीज. सो
ईच नोड विल हैव ईदर k चिल्ड्रन और नो चाइल्ड। फाइन। तो हर उसके जो भी मतलब मेरा एक नोड होगा, या तो उसके, अगर वो केरी ट्री है, अगर वो केरी ट्री था और उसके आगे मैं स्ट्रिक्ट भी लगा दूँ, मेनली हम स्ट्रिक्ट ट्रीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। केरी ट्रीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, हम स्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिक्ट बाइनरी भी लिख सकते हैं, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्रीज़ भी कुछ हो सकता है, स्ट्रिक्ट टर्नरी ट्रीज़ भी हो सकते हैं। बट अगर मैं स्ट्रिक्ट वर्ड की मेन बात करूँ तो या तो उसके अंदर, अगर मैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की बात करूँ तो या तो उसके अंदर किसी नोड के 0 चाइल्ड होगा, मतलब या तो लीफ नोड होगा, और अगर वो इंटरनल नोड है तो उसके 2 चाइल्ड होंगे, कोई भी एक 2 चिल्ड्रन होंगे, कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा जिसका एक चाइल्ड हो। सो इफ़ आई हैव टू लाइक टर्म इट इन अ मोर easy way, then a strict binary tree is a tree in which every node will have either 2 children or no children. So if I have to ask you कि ये वाला जो ट्री है क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो नोड है इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। मतलब जो डेफिनेशन, जो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है उसको एडहेयर नहीं करता। नाउ इफ़ आई से कि, सो नाउ इफ़ आई से हाँ हाँ, सो नाउ इफ़ आई से कि क्या ये स्ट्रिक्ट टर्नरी ट्री है? क्या ये स्ट्रिक्ट टर्नरी ट्री है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिक्ट टर्नरी ट्री के अंदर या तो किसी भी नोड के 0 चाइल्ड हो तो चलेगा, मतलब या तो अगर वो लीफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसके k नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए थे, मतलब k मतलब इसके अंदर 3। बट ये जो नोड है इसके तो सिर्फ 2 ही चाइल्ड है, और ये वाले जो नोड है इसके तो सिर्फ 2 ही चाइल्ड है, तो ये एक स्ट्रिक्ट टर्नरी ट्री नहीं है। जबकि कभी भी डिस्कस नहीं होगा स्ट्रिक्ट मतलब टर्नरी ट्री के बारे में, जनरली स्ट्रिक्ट केरी ट्रीज़ को हम ले लेते हैं या फिर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्रीज़ के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। फाइन। तो अगर जनरल डेफिनेशन बोलनी हो तो एवरी नोड विल हैव ईदर k चिल्ड्रन और नो चाइल्ड, कि या तो हर एक के k नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। फाइन। अगर कोई भी चाइल्ड नहीं होगा तो मतलब वो लीफ नोड है, लीफ नोड है तो ऑफ कोर्स उसका कोई भी चाइल्ड होगा ही नहीं। बट अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसके पूरे के पूरे जो k नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो सारे होने चाहिए। फाइन। सो दिस इज़ व्हाट स्ट्रिक्ट केरी ट्रीज इज। So after discussing this second definition, we'll move over to this particular full carry trees. As to what full carry trees are. Full carry trees are जिसमें सारे लीफ नोड्स लास्ट लेवल पर हो। सारे किस मतलब कि वो स्ट्रिक्ट तो है ही है, और उनके जितने भी लीफ नोड्स होंगे वो सारे के सारे लास्ट लेवल पर होंगे, और वो पूरा कंप्लीट मतलब एक पूरा कंप्लीट सा लगेगा ट्री। फाइन। सो इन अ फुल केरी ट्री, एक फुल केरी ट्री स्ट्रिक्ट तो होता ही होता है, बट उसके साथ साथ एक जो एक्स्ट्रा उस पर जो डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल विच इज़ द लास्ट लेवल, एंड ऑल द लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। मतलब जितने भी होंगे लेवल्स वो सारे कम्प्लीटली फिल होंगे। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो ये फुल केरी ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो ये स्ट्रिक्ट केरी ट्री ही नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री ही नहीं है ये तो, क्योंकि इसके अंदर ये वाले पर्टिकुलर नोड का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है। फाइन। तो इसलिए हम इसको तो बिल्कुल भी फुल तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट ही नहीं है। और मोर ओवर
मतलब इसलिए हमने उसको फुल नहीं बोला। अब अगर मैं ये वाला नोड भी बना दूँ तो इसको मैं फुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रिक्ट है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि ऑल माई लीफ नोड्स आर एट द लास्ट लेवल, फाइन, and all the levels are completely filled, fine. So this is the definition of my full carry trees. Now moving over, अभी मैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब पहले हम डेफिनेशन से वेल वर्स हो जाए, उसके बाद हम इनकी जितनी भी डेफिनेशंस और मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, फाइन. Okay, so what is a complete carry tree or a complete binary tree only? तो complete binary tree वो होगा जिसके अंदर सारे लेवल्स तो फिल होंगे ही होंगे, साथ में जो भी लीफ नोड्स होंगे, वो मेरे जितने भी मेरे लीफ नोड्स होंगे वो या तो लास्ट लेवल पे होंगे या तो सेकंड लास्ट लेवल पे होंगे. ये फर्स्ट क्लॉज हो गया कि जितने भी मेरे लीफ नोड्स हैं वो लास्ट लेवल पे होंगे या फिर सेकंड लास्ट लेवल पे होंगे. एंड सेकंड क्लॉज इज कि ऑल द कीज आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल. ऑल द कीज आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल. ऑल कीज आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल. फाइन. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि इसका मतलब क्या हुआ. सो ये दोनों क्लॉज को पहले मैं रब करके थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ. तो ये दोनों क्लॉज का मतलब क्या होता है अब हम डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या ये मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्ट्रिक्ट भी होना मतलब इम्पॉर्टेंट है. तो ये तो पहले तो स्ट्रिक्ट ही नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है. स्ट्रिक्ट इज़ नॉट विच इज़ लाइक अ हार्ड एंड फास्ट रूल, तो मैं स्ट्रिक्ट तो नहीं बोलूँगा. तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो मेरी लीफ नोड्स तो वैसे लास्ट लेवल पे है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वाला तो पॉइंट सेटिस्फाई होता है. बट ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा कि ऑल द कीज़ आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल. इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से मेरा ये मतलब है कि अगर कोई चाइल्ड यहाँ पर अवेलेबल मतलब के लिए स्पेस था तो ये वाला जो चाइल्ड है उसको लेफ़्ट में होना चाहिए था. मतलब कि लेफ़्ट इस ये वाला जो चाइल्ड है वो यहाँ पर भी आ सकता था, राइट, या फिर यहाँ पर भी आ सकता था, राइट. तो पहले लेफ़्ट वाइज सारे फिल होने चाहिए मतलब चिल्ड्रन, और फिर उसके बाद ये वाला फिल होना चाहिए. तो अगर मैं एक और नया ट्री बनाऊँ तो इसमें मैं लेफ़्ट से फिल कर रहा हूँ. सो दिस इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. नाउ इफ़ आई फिल इन दिस तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, फाइन. नाउ इफ़ आई फिल इन दिस ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है. वाई? बिकॉज तो अगर कोई फुल बाइनरी ट्री है तो वो कंप्लीट भी होगा ही, फाइन. बट क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर मेरी सारी लीफ नोड्स लास्ट लेवल पे होती है और इसके अंदर मेरी सारी लीफ नोड्स लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट लेवल पे भी हो सकती है. बट इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि ऑल कि जो भी मेरे मतलब चाइल्ड बनेंगे वो लेफ़्ट से बनने चाहिए. सो लेट्स से कि मैं ये वाला ये हटा देता हूँ. तो अब क्या ये मेरा अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, क्योंकि ये वाला जो चाइल्ड है मतलब ये वाला तो बीच में मिसिंग हो गया ना. ये वाला जो चाइल्ड है वो लेफ़्ट में भी आ सकता था ना, मतलब इससे लेफ़्ट में हो सकता था, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता था. तो कंप्लीट नहीं है ये, क्योंकि बीच में एक पोजीशन छूट गई है, इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं कह रहे थे. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की ये दो क्लॉजेस है, अगर ये दो क्लॉजेस सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कंप्लीट होगा,
फाइन। और फुल तो बहुत ही ईजी होता है, फुल तो मतलब आपका कि मतलब अब ये जैसे फुल है 2 लेवल्स का, ये फुल है। नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ अ फुल बाइनरी ट्री ऑफ 3 लेवल्स, तो ये फुल है। फिर आई हैव टू ड्रॉ अ फुल बाइनरी ट्री ऑफ लेट्स से 4 लेवल, तो ये भी फुल है। फाइन। तो मतलब ये बेसिक डेफिनेशंस है ट्रीज़ की। अब हम चलते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन ट्रीज़ के बारे में उनको डिस्कस करने। फाइन। तो हमने ट्रीज़ की डेफिनेशंस तो देख ली, बट अब हमें ये भी देखना है कि उन ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट। मैं मतलब ट्राई करूँगा कि जो जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट प्रूव कर दूँ, बट बिकॉज वी आर हैविंग आवर ओन टाइम कंस्ट्रेंट्स, so I might not be able to like cover or prove each and everything, but I'll try to explain almost everything whatever we are discussing. Fine. So now discussing the very first property कि एक full binary tree में if I am having a full binary tree of height h, तो उसके अंदर number of nodes इतने होते हैं। कैसे होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। So let's say if I am having दिस इज़ अ फुल बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 1। अभी हमने ये तो डिस्कस किया था कि एक ट्री की हाइट कैसे निकालते हैं। फाइन। सो कैसे निकालते हैं, मैं रूट नोड की हाइट निकालूंगा। रूट नोड से 2 नोड्स ही रीचेबल है, तो इस और वो डिस्टेंस है 1 पे, दोनों सेम पे ही है, तो इसकी हाइट 1 हो गई। तो अगर मेरा एक फुल बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री है ऑफ हाइट इक्वल टू 1, फाइन। तो उसके अंदर कितनी नोड्स होंगी, मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी। 0 लेवल पे मतलब इस लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए 2⁻0, इस लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए 2⁻1। देन एट द नेक्स्ट लेवल टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गई 2⁻2, फाइन। देन उससे नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी 2⁻3। तो अगर आप सम करो, अगर आपको सिर्फ इस लेवल तक ही था कि इस लेवल तक कितनी नंबर ऑफ नोड्स हुए, तो अगर आप सम करो तो इफ़ आई हैव टू से दिस, लेट्स से तो अगर मैं मतलब ये देखूं कि एक मेरे पास ट्री है जिसकी हाइट h है, तो उसके लेवल 0 पे कितने नोड्स होंगे 2⁻0, और उसके लेवल 1 पे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2⁻1, उसके लेवल 2 पे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2⁻2, उसके लेवल 3 पे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे इतने। तो ऐसा चलता चलता जो हाइट h जो कि लास्ट लेवल होगा उस पे नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2⁻h। फाइन। सो नाउ इफ आई सम ऑल ऑफ देम अप, तो ये निकल के आता है 2⁻h+1 -1। सो मैंने कैसे निकाला, मतलब सिंपल फॉर्मूला जो होता है मतलब जो एक अगर मेरे पास एक मतलब प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका सम कैसे निकालते हैं ऐसे करके। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म थी 2⁻0, तो 2⁻0 r, my r was 2 and my n was h -1 upon whatever was my r is 2, so 2 -1। और अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी h+1, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी h+1, बिकॉज मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैं h तक गया। फाइन। सो इससे मेरा निकल के आ गया 2⁻h+1 -1। सो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर, मतलब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा। नाउ अब हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होती है और कितनी मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होती है। मैक्सिमम तो वही होगी कि अगर मेरा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल है, अगर वो फुल है, लेट्स से कि ये मेरा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 2, राइट, अगर ये ऑफ हाइट 2 अगर ये फुल है एकदम मतलब कंप्लीट, अगर एक फुल बाइनरी ट्री जो होता है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है, बट जब वो फुल होगा तभी उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होगी, राइट। सो इसके अंदर तो हमें पता ही है कि अगर वो फुल होता है तो उसके अंदर 2⁻h+1 -1 नंबर ऑफ नोड्स होती है।
और अगर वो फुल नहीं होता, अब हमें निकालना है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स होगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकालने के लिए, ऑफ हाइट h निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैं हटा दूँगा और ये हटा दूँगा। मतलब जितनी भी मेरी लास्ट लेवल पे लीव्स होंगी ना, मैं सबको हटा दूँगा, सिर्फ एक जो लीफ होगी उसी को रखूँगा, तभी मेरी मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकल पाएगी, राइट। इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, अगर मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी मेरी लीव्स है लास्ट लेवल पे मैं सब हटा दूँगा, सिर्फ एक लीव छोड़ के, क्योंकि मेरे को अपनी ट्री की हाइट भी तो मेंटेन करनी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर h-1 लेवल तक कितनी टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स होंगी, 2h-1 + 1 -1। मतलब कहने का मतलब है कि 2h-1 नंबर ऑफ़ टोटल नोड्स होगी यहाँ से लेकर इस लेवल तक। और जो लास्ट लेवल होगा उस पे तो मेरी सिर्फ एक ही लीफ नोड है, तो अगर मैं +1 कर दूँ तो वो 2h आ जाएगा, राइट। So if I have to term it in a short way, then the maximum number of nodes in a complete binary tree is equivalent to the number of nodes in a full binary tree. And if I have to find out the minimum number of nodes in a complete binary tree, तो वो कौन से ट्री में होंगी मिनिमम, जिसमें सारी लीव्स हटी होंगी मेरी लास्ट लेवल की, सिर्फ एक को छोड़कर। फाइन। तो this is how we like find out the maximum and the minimum number of nodes in a complete binary tree. Now अब ये तो दो बहुत ही easy चीज़ें थी। Now discussing about the most important formula, जो कि जिसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही सारे, मतलब गेट के अंदर, नेट के अंदर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेनली हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो दे आर सेइंग दैट वी आर हैविंग द अ स्ट्रिक्ट कैरी ट्री, कि अगर वो लीफ नोड है तो उसके कोई भी मतलब चिल्ड्रन नहीं होगा। अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसके पूरे के पूरे के चाइल्ड होने चाहिए। सो लेट्स से इफ आई एम हैविंग अ स्ट्रिक्ट टर्नरी ट्री, मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लेट्स टेक कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिक्ट थ्री ईयरी ट्री है, तो उस केस में इनिशियली मेरे पास एक ही नोड था। फाइन। तो इनिशियली तो मेरे पास एक ही था, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड को लीफ नोड से हटाकर, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स और टोटल नंबर ऑफ़ इंटरनल नोड्स। व्हाट आर इंटरनल नोड्स? जो लीफ नोड्स नहीं होती ना, वो सारी इंटरनल नोड्स होती है। तो इफ़ आई हैव टू से कि इंटरनल नोड्स क्या होती है, तो जितनी भी मेरी टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स होंगी, जितनी भी मेरी नोड्स होंगी, टोटल सेट ऑफ नोड्स होंगी, उसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरी लीफ नोड्स को, तो उनको हम इंटरनल नोड्स कह देते हैं। फाइन। तो अब मैं बेसिकली जो डेफिनेशन फाइंड आउट, जो मैं रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, लीफ नोड्स और इंटरनल नोड्स के बीच में क्या रिलेशन है, लीफ नोड्स और इंटरनल नोड्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो लीफ नोड्स और इंटरनल नोड्स के बीच में ये रिलेशन है कि इनिशियली मेरी लीफ नोड थी सिर्फ एक ही, जब मेरी इंटरनल नोड्स 0 थी, तो मैं एक चार्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि जब मेरी नंबर ऑफ़ इंटरनल नोड्स 0 थी, अभी इस केस में 0 है, राइट, तो मेरी नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स कितनी है, 1। नाउ इफ़ आई इंक्रीज़, मतलब कि मैं सिर्फ इसको इंटरनल नोड बना दूँ, तो मेरी लीव्स देखना कितनी इंक्रीज़ होगी, टोटल k-1 इंक्रीज़ हो जाएगी। इस केस में k 3 है,
तो टोटल 3 माइनस 1 विच इज़ 2 इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे? अगर मैं इसको इंटरनल नोड बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसके 3 चिल्ड्रन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिक्ट 3 ट्रीज, राइट। तो अगर मैंने ऐसे किया तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स 1 से तो इंक्रीज़ हो गए, फाइन। सो और बट जो नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो गई? 3 हो गई। तो कहने का मतलब है कि k-1 नंबर से वो इंक्रीज़ हो गई। तो ऐसा ही आप जिस भी अब नोड को चूज़ कर लो। लेट्स से कि मैं इस नोड को अब मैं इंटरनल नोड बनाना चाहता हूँ, तो जब मैं इंटरनल नोड बनाऊँगा तो मैं इसको इसमें 3 चिल्ड्रन ऐड करूँगा। जब मैंने 3 चिल्ड्रन ऐड कर दिए तो मैं एक और कॉलम बनाता हूँ। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मेरी नंबर ऑफ़ इंटरनल नोड्स अब 2 हो गई तो मेरे टोटल नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स हो गई 5, फाइन। तो इसलिए जब भी मैं एक इंटरनल नोड ऐड करता हूँ तो मेरे k-1 नंबर ऑफ़ k-1 नंबर ऑफ़ मतलब लीफ नोड जो है वो ऐड हो जाती है। तो इसलिए जो मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स का वो ये है कि जितनी भी मेरे इंटरनल नोड्स है इंटू k-1 प्लस 1। नाउ वाई एम आई सेइंग दिस प्लस 1? बिकॉज अगर मेरी 0 नंबर ऑफ़ इंटरनल नोड्स है तो भी मेरा एक खाली जो रूट है वो भी तो एज अ लीफ ही काम करता है ना इनिशियल में। तो मैंने इस पूरे रिलेशन को जो भी मेरा टेबल के अंदर आ रहा था मैंने इस फॉर्मूले के अंदर लिख दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर फार्मूला इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पर्टिकुलर इस फॉर्मूले के ना बहुत सारे वेज़ में आप तोड़ मड़ोड़ के आपको दिखेंगे कि बहुत सारे वेज़ में यूज़ हो रहे हैं, फाइन। सो नाउ इफ किस वे में यूज़ होगा? इस वे में भी यूज़ हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स लेट्स से कि n है, तो वो क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ़ इंटरनल नोड्स इज इक्वल्स टू n। तो ये दोनों फार्मूलाज मिल के ये वाले दो फार्मूलाज हैं। इन ये तो पता ही है, ये तो बहुत ही ईजी है। ये मैंने यहाँ पर भी लिखा था कि मेरी इंटरनल नोड्स क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स माइनस लीफ नोड्स, राइट। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स इज इक्वल्स टू ऑल द इंटरनल नोड्स और ऑल द लीफ नोड्स। अगर दोनों को प्लस कर दे तो मेरी टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स जो है वो आ जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों को फॉर्मूले को प्लस कर दूं मतलब तो मैं बहुत ही वेज़ में मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस मैं बहुत सारे बना सकता हूँ। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो जस्ट हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। what does k stands for? Okay, so k stands for, so I actually gave a very general definition of k-ary trees, right? तो k-ary trees क्या होते हैं? k here defines कि किसी भी नोड के मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, फाइन। k डिफाइंस कि एक किसी भी नोड के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं। और अगर मैं इसके आगे स्ट्रिक्ट ऐड कर दूं तो इसका मतलब हो जाता है कि या हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या तो k चाइल्ड होंगे। 0 और k के बीच में कुछ नहीं होगा, 1 या 2 या 3 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, k-1 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। या तो उसके 0 होंगे या तो उसके k चाइल्ड होंगे, अगर मैं उसके आगे स्ट्रिक्ट वर्ड भी ऐड कर दूँ। तो उसी चीज़ के लिए हम स्ट्रिक्ट k-ary ट्रीज़ के लिए हम एक फार्मूला दे रहे थे जिसके अंदर हमने रिलेशन फाइंड आउट किया बिटवीन द नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स एंड द नंबर ऑफ़ इंटरनल नोड्स, फाइन। तो ये क्या, तो अभी पहले मैंने आगे क्वेश्चंस ऐड किए, ये वाली चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले हम जाके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, फुल तो नहीं, इसके अंदर मैंने और भी क्वेश्चंस ऐड किए थे। ओके, सो प्रॉब्ली मैं खुद से ही बनाता हूँ अभी। ओके, सो मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ पर इस वाली स्लाइड पे लिखने की कोशिश करता हूँ। सो आई वॉज हेयर की, हाँ, कि इन अ स्ट्रिक्ट k-ary ट्री, तो आई विल प्रॉब्ली कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन बिकॉज आई एम हैविंग द क्वेश्चंस विद मी, तो मैं वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ।
ओके फाइन। तो ये एक क्वेश्चन है, मतलब ऐसे लास्ट में और भी क्वेश्चंस हैं बट अभी मैं ये वाला डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आई एम गिवन अ कंप्लीट एनरी ट्री। फाइन। अब उन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है। अब अगर आप देखोगे तो बिकॉज दे आर गिविंग अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ट्रीज। जो हमने पढ़ी, हमने तो हमेशा स्ट्रिक्ट पढ़ा, बट यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिक्ट नहीं बोला, इन्होंने बोला है कंप्लीट। बट अगर आप डेफिनेशन आपको पता होगी ना तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे उन चीज़ों को सेम। फाइन। तो इन्होंने कहा है कि मेरे पास एक कंप्लीट एनरी ट्री है। अब उस कंप्लीट एनरी ट्री की जो इन्होंने डेफिनेशन दी वो सेम है जो कि स्ट्रिक्ट केरी की थी। सो दे आर सेइंग कि a complete n-ary tree is a tree in which each node is either having n children or no children. फाइन। या तो उसके n चिल्ड्रन होंगे या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं होगा। अगर n चिल्ड्रन है मतलब ये दे आर बेसिकली दे आर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट केरी ट्रीज, बट यहाँ पर उन्होंने k को रिप्लेस करके बोल रहे हैं n, और स्ट्रिक्ट वर्ड को रिप्लेस करके कंप्लीट बोल रहे हैं, बट डेफिनेशन जो है वो सेम ही है। नाउ लेट आई बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, आई बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, जो कि उन्होंने बोला है 10 है। फाइन। एंड एल बी द नंबर ऑफ लीफ नोड्स, जो कि एल हो गया 41। नाउ दे आर आस्किंग अस दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, find out the value of n. So now if I have to write down the formula, तो हमने ये पढ़ा था L is equals to I into k minus 1 plus 1. फाइन। बट यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने k को n से रिप्लेस किया हुआ है, तो मैं भी यही करूँगा, मैं n से रिप्लेस कर दूँगा और जो भी वैल्यूज़ हैं वो मैं पुट इन कर दूँगा। तो L की वैल्यू है 41, राइट। So 41 is equals to I की वैल्यू हो गई 10, देन n माइनस 1 को मैं एज इट इज़ रखूँगा क्योंकि n की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर प्लस 1। फाइन। सो 1 गोज ओवर हेयर, सो 40 इज इक्वल्स टू 10 इंटू n माइनस 1। सो आई कट दिस, सो 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, सो n बिकम्स 5। फाइन। तो n की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 5 हो गया। तो इसी वे में वो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जो नेट के अंदर थे। कभी वो i और k की वैल्यू दे देंगे और वो पूछेंगे कि l की वैल्यू निकालो, कभी वो l की और k की वैल्यू दे देंगे और वो बोलेंगे कि i की वैल्यू निकालो, कभी वो मेरे को मतलब कि k की वैल्यू जैसे इन्होंने निकालने को बोला, और कभी कभार वो क्या करेंगे कि l प्लस i की वैल्यू दे देंगे कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन माई ट्री इज़ लेट्स से 10 और नंबर ऑफ लीफ नोड्स इज़ इक्वल्स टू 5। तो आपको पता लग गया कि n की वैल्यू जब 10 है और l की वैल्यू जब 5 है तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितनी हो जाएगी, वो भी 5 होगी। तो आप मतलब कहने का मतलब है कि आप इन वेज में l और i की वैल्यू मतलब निकाल सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं दो फॉर्मूलेस पे बन जाते हैं, ये दो फॉर्मूलेस पे। तो कभी ये मिसिंग होगा, कभी आई मिसिंग होगा, कभी के मिसिंग होगा, सिंपली ये होगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फाइन। सो आफ्टर हैविंग डिस्कस दिस we will actually now discuss this particular concept. So I'll rub this off. ओके सो सभी ने आंसर कर ही दिया था वैसे। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बट नाउ अब इसको मतलब आप इरेज कर सकते हो। अब हम ये दो रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दे आर सेइंग द क्वेश्चन हेयर इज़ कि हाउ मैनी डिफरेंट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल विद n अनलेबल्ड नोड्स। कि अगर मेरे पास n नोड्स दे रखी है मुझको, लेट्स से कि मेरे पास 3 नोड्स है, तो उससे कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो द आंसर टू दिस इज कैटलान नंबर। कैटलान नंबर
So what is Catalan number? The answer is 2NCN upon n+1. तो पहले हम मैंने तो सीधा आंसर दे दिया, पहले ज़्यादा डिस्कस किया ही नहीं कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम पहले वापस उधर चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो इसका तो क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे 3 या फिर 4 नोड्स दे रखी है, 3 नोड्स दे रखी है, तो उससे कितने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो एक ये पॉसिबल है, फाइन, एक ये पॉसिबल है, एक ये ट्री स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सॉरी, तो ये 5, अगर मुझे 3 नोड्स दी है तो ये 5 स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉसिबल है, फाइन, अगर मुझे 3 नोड्स दी है तो। और इसी तरीके से अगर मेरी नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ती है तो एक बाइनरी मतलब कि इफ़ आई एम गिवन n अनलेबल्ड नोड्स, n अनलेबल्ड नोड, व्हाट डू आई मीन बाय अनलेबल्ड नोड्स, कि मेरे को सिर्फ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। अगर मैं दे दूँ कि मेरे पास 1, 2 और 3 थी, तो इसी स्ट्रक्चर से मेरी और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं अगर मेरे पास लेबल्ड नोड्स होती तो कैसे मैं और सारे स्ट्रक्चर बनाता, मैं किसी में यहाँ पर 1 को प्लेस करता, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और किसी में मैं क्या करता कि मैं यहाँ पर इसको 3 प्लेस कर देता, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो कहने का मतलब है कि टोटल हर एक स्ट्रक्चर से 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और बन सकते थे अगर ये लेबल्ड होती, फाइन, बट मेरे को लेबल्ड नहीं चाहिए थी, मेरे को अनलेबल्ड चाहिए थी। तो अगर मेरे पास अनलेबल्ड नोड्स है तो उससे कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, हाँ, कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, दैट इज़ एक्चुअली गिवन बाय कैटलान नंबर। तो अभी मैं सीधा वो डिस्कस नहीं कर रहा कि कैसे निकला ये कि कैटलान नंबर है, हाउ डिड वी फाइंड आउट दिस रिज़ल्ट, बट मैं सीधा आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इफ़ विल गो अबाउट डिस्कसिंग द होल कॉन्सेप्ट कि क्यों है, तो वो पूरा क्लास ले लेगा। तो इसलिए मैं सिंपली आपको आंसर दे रहा हूँ कि अब अगर इन द एग्ज़ाम इफ़ दे आस्क यू कि हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल विद 3 अनलेबल्ड नोड्स, देन द आंसर वुड बी 3 × 2, मतलब अभी तो आपने सीधा देख ही लिया कि 5 है, बट मैं अब निकाल के भी दिखा रहा हूँ कि 6C3 अपॉन n+1, n+1 is 4, fine. So if I find this out, then it would be 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial upon 4, fine. So it would be 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 3 factorial. तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और अपॉन में 4 भी था तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, और 3 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 6 ओनली, तो आंसर आ गया 5, फाइन। सो आप सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको सारे ये बनाने का मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो मतलब द नंबर ऑफ अनलेबल्ड नोड्स वुड बी, लेट्स से गिव द आस्क यू कि हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल विद 7 अनलेबल्ड नोड्स, सो यू शुड राइट अवे पुट 7 इन दिस, और आपको आंसर निकालना है, फाइन। तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करने हैं, आपको सीधा फॉर्मूले में पुट इन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब भी मैं ये नहीं डिस्कस कर सकता कि कैसे आए ये फार्मूला, आई विल डिस्कस दिस प्रॉब्ली इन द फुल कोर्स, क्योंकि अभी टाइम नहीं होगा। तो नाउ कमिंग ओवर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अगर मेरे पास n लेबल्ड नोड्स हो तब कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, तब कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है। जैसे मैंने बात की थी कि अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, फाइन, अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, 3 नोड्स का एक स्ट्रक्चर है,
तो इसमें मैं 3 फैक्टोरियल वेज में मैं अपने 1, 2 और 3 जो लेबल्ड नोड्स है मेरी, उनको मैं पुट कर सकता हूँ। फाइन। तो अब मुझे इतना तो पता है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने हैं। मेरे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है 2n Cn अपॉन n+1, और हर एक स्ट्रक्चर से मैं कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बना सकता हूँ, n फैक्टोरियल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बना सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको अगर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे मतलब पेपर में जाना है तो मैं जनरली सिर्फ यही फॉर्मूला याद करके रखता हूँ, ये वाला, कि हाउ मैनी बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल विद n अनलेबल्ड नोड्स। क्योंकि अगर मुझे ये याद है तो इससे मैं ये मतलब जो सेकंड वाला आंसर है वो मैं निकाल ही सकता हूँ। फाइन। तो जो मेन है, सॉरी ये मतलब, तो जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, ये वाला। अगर आपको ये याद है विच इज़ दी कैटलान नंबर, तो आप और बाकी मतलब जो थोड़े बहुत चेंजेस वो कर सकते हैं मतलब पेपर के अंदर, वो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो अगर मेरे पास n अनलेबल्ड नोड्स है, या फिर वो एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं, द लैंग्वेज वुड बी दिस, कि हाउ मैनी डिफरेंट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल विद n नोड्स ओनली। अगर उन्होंने स्ट्रक्चर कह दिया ना, तो दैट वुड मीन कि वो अनलेबल्ड नोड्स की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर सिर्फ पूछना चाह रहे हैं। बट अगर वो कहेंगे कि हाउ मैनी बाइनरी ट्रीज आर पॉसिबल विद n लेबल्ड नोड्स, अगर लेबल्ड नोड्स वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रक्चर से n फैक्टोरियल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज जनरेट हो सकते हैं अगर आप के पास लेबल्ड नोड्स हो, क्योंकि आप इसके अंदर 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। फाइन। और इसके अंदर आप कितने पुट कर सकते हैं, जो भी एक यहाँ पर ऑक्यूपाइड होगा तो उसको छोड़ के आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस थे, यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे, यहाँ पर 1 ऑप्शन होगा, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरीके से अगर n मतलब बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर है विद n अनलेबल्ड नोड्स, तो उससे n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ट्रीज जो है जनरेट हो सकते हैं। तो आपको बस ये वाला याद रखना है, बाकी आप नेक्स्ट वाला ये वाला तो आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। फाइन। सो नाउ डिस्कसिंग अबाउट, सो यहाँ तक तो व्हाट आई एम लाइक ट्राइंग टू डू इज़, अगर लेबल हो तो n फैक्टोरियल होता ना। हाँ निवेदिता, अगर लेबल्ड होंगे तो जितने भी मेरे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है उसको मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिर्फ n फैक्टोरियल नहीं, जितने भी मेरे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं उसको मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। फाइन। सो आई विल जस्ट सी कि और कुछ ओके फाइन। सो और तो कुछ डाउट नहीं था। तो अभी मैं मतलब क्रैश कोर्स के अंदर मेनली क्या करूँ कि जो जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं मैं वो रिजल्ट्स देते जा रहा हूँ, बट शायद मैं उनके डिस्कस ना कर पाऊँ कि उनके रिजल्ट्स आए कैसे। वो शायद मैं फुल कोर्स में ही, मतलब मेरे पास शायद इतना टाइम हो कि मैं फुल कोर्स में ही मतलब डिस्कस कर पाऊँगा। तो नाउ डिस्कसिंग अबाउट ट्रैवर्सल्स। फाइन। कि इफ़ आई एम गिवन a simple binary tree, then in how many ways can I traverse that particular binary tree? So let's say if I have to traverse this particular tree, E, G, F, B, C, M, N. Fine. So if this is my tree, now if I have to do the pre-order traversal, actually in graphs we will actually study only 2 types of traversals, one is DFS and one is BFS. तो वो DFS के ही 3 पार्ट्स है ट्रीज़ के अंदर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, और BFS को हम ट्रीज़ के अंदर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। फाइन। तो अब
अब हम एक एक करके मतलब सॉरी इसको रिकवर नहीं कर सकते, मुझे ट्री वापस बनाना पड़ेगा। ओके तो अब हम मतलब एक एक करके इन तीनों ट्रैवर्सल्स मतलब चारों ट्रैवर्सल्स के बारे में कर लेंगे, बिकॉज इन पेपर ये ट्रैवर्सल्स बहुत इजी होते हैं बट पेपर में पूछे जाते हैं और हमें मतलब आने भी चाहिए। फाइंड दैट्स A D C B G F H N I. Fine. So what is a pre-order? So in DFS अगर मुझे एक बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करनी है DFS और BFS की, तो DFS इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि आप डेप्थ में जाते जाओ, कि नेक्स्ट लेवल पे जाते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि एक लेवल के सारे नोट्स आप पहले डिस्कवर कर लो, ऐसा नहीं है। आप अंदर जाते जाओ जो जो आपको मिल रहा है, और आपको ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पहले ही एक लेवल के सारे नोट्स डिस्कवर करें। फाइन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ओके और BFS में जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले जितने भी एक लेवल के जितने भी नोट्स हैं वो सारे डिस्कवर हो जाएं, मतलब आप विज़िट कर लें, देन सेकंड लेवल के सारे नोट्स विज़िट कर लें, देन थर्ड लेवल के, देन फोर्थ लेवल के, ऐसे आप विज़िट करें। बट डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है कि आप डेप्थ में जाते जाएं। फाइन, तो अब हम एक एक करके प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्री ऑर्डर? प्री ऑर्डर इज़ कि पहले ही जैसे ही आपको नोट मिले आप उसको मतलब उसको प्रिंट कर दीजिए, या फिर जिस भी वे में आपको उसको प्रोसेस करना है कर दीजिए। फिर आप लेफ़्ट सब ट्री में जाइए रिकर्सिव वे में, और फिर आप राइट सब ट्री में जाइए। सो प्री ऑर्डर इज़ कि जैसे ही आपको नोट दिखे वैसे ही आप उसको प्रिंट कर दो, जैसे ही आप उस नोट पे पहुँचे वैसे ही आप उसको प्रिंट कर दो। सो इफ़ आई हैव टू लाइक डू प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑन दिस पर्टिकुलर ट्री, हाउ विल आई डू दैट? आई विल स्टार्ट ऑफ विद माई रूट नोड, so I'll write my pre-order traversal over here. Fine, so I'm starting off from here. Okay, so I'm starting off from here. तो मैं जैसे ही इस नोड पे था तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको प्रोसेस कर दिया और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपना ये पूरा लेफ़्ट सब ट्री पे चले जाऊंगा, देन उसके बाद मैं राइट सब ट्री पे जाऊंगा, बट पहले मैं पूरे के पूरे लेफ़्ट सब ट्री को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये होता है प्री ऑर्डर। तो मैं लेफ़्ट सब ट्री पे जैसे ही गया, मैं लेफ़्ट सब ट्री पे आया, तो जैसे ही मैं लेफ़्ट सब ट्री पे आया पहले मुझे डी दिख गया तो मैंने डी प्रिंट कर दिया। फाइन, तो अब डी के भी मेरे को पूरे के पूरे लेफ़्ट को पहले कवर करना है। फाइन, तो अब मैं डी से लेफ़्ट में आया, जैसे ही मैं डी से लेफ़्ट में आया मुझे जी दिख गया, तो जी पे जैसे ही मैं था, मैं जहाँ पर भी पहुँचूँगा मैं उसको सीधा प्रोसेस करता जाऊँगा। फाइन, अब जी से मैंने जैसे ही प्रोसेस कर दिया मुझे उसका लेफ़्ट सब ट्री भी प्रोसेस करना था, तो मैंने उसका लेफ़्ट सब ट्री जो कि एफ़ है वो मैंने प्रोसेस कर दिया। फाइन, तो मतलब मैं लेफ़्ट सब ट्री पे आया, तो जैसे ही मैं इस पे आया मैंने एफ़ मुझे मिला, मैंने एफ़ को प्रोसेस कर दिया। फिर मैं उसके लेफ़्ट सब ट्री पे जाऊँगा, उसके लेफ़्ट सब ट्री में तो नल है तो मैं वापस आ गया। फिर इसके राइट सब ट्री में भी नल है तो मैं वापस आ गया। फिर जी पे गया, जी से मैंने उसका जी का लेफ़्ट सब ट्री तो मैंने अब पूरा का पूरा प्रोसेस कर दिया। तो अब इसका मैं राइट सब ट्री प्रोसेस कर रहा था तो मुझे पता लगा कि इसके राइट सब ट्री में तो नल है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर मैं वापस डी पे गया, तो जब मैं डी पे गया तो मेरे को अब ये था कि मैंने लेफ़्ट सब ट्री तो पूरा ट्रैवर्स कर दिए, तो अब मैं राइट सब ट्री ट्रैवर्स करता हूँ। तो राइट सब ट्री पे जैसे ही मैं गया तो मैं बी पे पहुँचा। अब जैसे ही मैं बी पे पहुँचा तो मैंने बी को प्रोसेस कर दिया। फाइन, तो अब बी भी प्रोसेस हो गया। बी का लेफ़्ट में नल है और बी के राइट में भी नल है, तो वही किया मैंने, लेफ़्ट और राइट नल नल कर दिया। फाइन, so now I moved back to my root node which was A.
So after reaching A, what did I do? Now I knew that I have already covered my left part of A or left subtree of A. So I need to go to the right subtree of A. Fine. तो मैं राइट सबट्री पे गया, तो जैसे ही मैं गया मेरे को C मिल गया, तो मैंने C को प्रोसेस कर दिया. फाइन. सो जैसे ही मुझे C मिला तो मुझे फॉलो तो यही करना ना, NLR. अब C का भी मुझे सबसे पहले लेफ़्ट सबट्री प्रोसेस करना है. उसके लेफ़्ट सबट्री में मैं जैसे ही गया मुझे H मिला तो मैंने प्रोसेस कर दिया. और कुछ था ही नहीं, ना लेफ़्ट में था ना राइट में था H के, तो मैं वापस चला गया C पे. फिर मैं इसके राइट पार्ट में आया क्योंकि लेफ़्ट सबट्री तो प्रोसेस हो चुका है. तो जब मैं राइट पे आया तो मैंने देखा M और I है, तो मैंने M को प्रोसेस किया, देन I को प्रोसेस, मतलब पहले तो मैंने M पे पहुंचा, फिर जैसे ही मैं M पे पहुंचा तो मैंने उसको प्रोसेस कर दिया. फिर मैं उसके लेफ़्ट सबट्री पे गया, लेफ़्ट सबट्री नल था तो मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया. फिर मैं वापस आ गया M पे, फिर मैंने देखा कि राइट सबट्री में है तो मैं राइट सबट्री इसको प्रोसेस कर देता हूँ. तो मैं I पे आया, मैंने I को प्रोसेस किया. अब इसके लेफ़्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, सो आई कुडंट रियली प्रोसेस दैट. So this is how my pre-order traversal looks like. Fine. So in pre-order traversal, the very first thing is कि जैसे ही आप नोड पर पहुंचो वैसे ही आपको उसको प्रोसेस कर देना है, मतलब प्रिंट कर देना है. जैसे ही आप नोड पे पहुंचो आपको वैसे ही उसको प्रिंट कर देना. फिर आपको लेफ़्ट और फिर राइट सब ट्री पे जाना है. अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि पहले आप लेफ़्ट ट्री पे जाओ, फिर आप राइट ट्री पे जाओ और फिर आप उस नोड पे जाओ. तो अगर मैं आपसे एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछूं, एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की ना प्रॉपर्टी होती है कि जो भी रूट नोड होता है ना वो सबसे स्टार्टिंग में होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ट्री है, उसकी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है दिस 10 9 6 8 4, उसकी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ये है. फाइन. मेरे पास एक ट्री था जिसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ये था. तो ये वाला अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में मतलब ये वाले ट्री की रूट नोड क्या हो सकती है, तो वो 10 होगी. वाई? बिकॉज हम हमेशा रूट नोड से ही स्टार्ट करते हैं और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि जो भी आप नोड पे हो उसको सबसे पहले प्रिंट कर दो. अब अगर मैं पोस्ट ऑर्डर की बात करूं तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि आप एकदम लास्ट में प्रोसेस करो उस नोड को. आप उसके पहले लेफ़्ट सब ट्री को भी प्रोसेस कर दो, फिर आप उसके राइट सब ट्री को भी प्रोसेस कर दो, देन एकदम लास्ट में आप उस नोड को प्रोसेस करो. फाइन. तो अगर मुझे दिया होता कि ये एक्चुअल में पोस्ट ऑर्डर है, एक किसी ट्री का ये एक्चुअल में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो इस ट्री का रूट क्या होता, ये होता 4, जो भी सबसे लास्ट में होता. फाइन. तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की. आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू नोट दिस डाउन कि इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल the very first node represents the root node, and in post order traversal the very last node represents the root node. Fine. और इन ऑर्डर में हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी रूट नोड है. फाइन. सो मैं अब इस ट्री का आपको पोस्ट ऑर्डर भी करके दिखाता हूँ एक बार. So I'll just erase this. फाइन. फाइन. गुड इनफ. सो अब हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे इस ट्री का. अगर मुझे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है तो सबसे पहले मैं रूट नोड से स्टार्ट करूँगा. रूट नोड से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मुझे पता है कि मुझे इसको प्रोसेस नहीं करना,
पहले मैंने इसके लेफ़्ट ट्री को प्रोसेस करना है, फिर मुझे इसके राइट ट्री को प्रोसेस करना है, उसके बाद इस नोड को प्रोसेस करना है। फाइन, ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं क्योंकि पहले तो मेरे को लेफ़्ट ट्री को प्रोसेस करना है, तो सीधा मैं लेफ़्ट ट्री पे जंप मार जाऊंगा। तो पोस्ट ऑर्डर में मैंने इसको प्रोसेस नहीं किया, मैं सीधा लेफ़्ट ट्री पे गया। फिर जब मैं डी पे गया तो अब मैंने इसमें भी ये वाला रूल फॉलो करना है कि आप लेफ़्ट ट्री को सबसे पहले प्रोसेस करो, फिर राइट को, फिर आप नोड को प्रिंट करो। तो आपने यही किया कि आप लेफ़्ट में चले गए, फिर आपने जी पे गए, मतलब लेफ़्ट में देखा जी और एफ़ था, तो आप लेफ़्ट में चले गए तो जी पे आए। फिर जैसे ही आप जी पे आए, जी पे भी आपको यही फॉलो करना था कि आप पहले लेफ़्ट को, जो भी लेफ़्ट ट्री है उसको पहले प्रिंट कराओ। तो लेफ़्ट पे गए तो एफ़ मिल गया मुझको लेफ़्ट में, फिर एफ़ के भी लेफ़्ट में गए जब मैं, तो मुझे देखा कि नल है, तो आई कैन नॉट रियली प्रोसेस है, तो मैंने लेफ़्ट को प्रोसेस कर दिया है, एफ़ के लेफ़्ट को। अब मैं फिर एफ़ के राइट में भी गया, वहाँ पर भी मुझे नल मिला, तो इसलिए मैं इसको प्रोसेस मतलब नहीं करना था मुझे। फिर क्योंकि इसके लेफ़्ट भी और राइट भी दोनों प्रोसेस कर चुका हूँ, तो अब मैं इस पर्टिकुलर नोड को भी प्रोसेस कर सकता हूँ। देन हाउ डू आई प्रोसेस, मतलब मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया। फाइन, तो मेरा एफ़ मतलब ये वाला पार्ट जो है ट्री का वो प्रोसेस हो चुका है। तो मैं वापस गया जी पे, क्योंकि अब जी का लेफ़्ट तो पार्ट प्रोसेस हो चुका है, अब राइट वाला पार्ट जो है वो प्रोसेस करने की मुझे ज़रूरत है। बट राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो राइट में नल है, तो इसलिए वो भी प्रोसेस हो गया। तो अब लेफ़्ट और राइट जी के लिए दोनों प्रोसेस हो गए, तो अब मैं नोड जी को प्रोसेस कर सकता हूँ। तो मैंने जी को प्रिंट कर दिया, फिर मैं वापस चला गया। तो अब मैंने देखा, जब मैं डी पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा डी का लेफ़्ट जो है वो पूरा का पूरा ट्रैवर्स या फिर प्रोसेस हो चुका है, बट अब मुझे इसका राइट जो है राइट ट्री उसको प्रोसेस करना है। फाइन, तो मैंने यही किया, मैं बी पे सीधा चला गया। अब जैसे ही मैं बी पे गया, बी पे भी मेरे को ये वाला रूल फॉलो करना है कि आप पहले उसका लेफ़्ट सब ट्री प्रोसेस करें, बट लेफ़्ट में कुछ था ही नहीं, फिर आप उसका राइट सब ट्री प्रोसेस करें, बट राइट में भी कुछ नहीं था, तो आप उसको सीधा फिर उस लेफ़्ट और राइट प्रोसेस करने के बाद फिर आप उस नोड को प्रोसेस कर दें। तो मैंने बी को प्रोसेस कर दिया, तो मैंने अब डी, फिर मैं वापस चला गया। जैसे ही मैं वापस गया तो मैंने देखा कि लेफ़्ट और राइट दोनों प्रोसेस थे, इसलिए मैंने डी को भी प्रोसेस कर दिया। फाइन, सो अब मेरा ये वाला पूरा पार्ट प्रोसेस हो चुका है। तो जैसे मैं ए पे गया, अब मुझे इसका राइट, ए का लेफ़्ट पार्ट तो प्रोसेस हो गया है, बट ए का राइट पार्ट जो है वो रहता है, इसलिए मैं ए को सीधा अभी प्रोसेस नहीं कर सकता, पहले मुझे इसका राइट को प्रोसेस करना होगा। तो मैंने यही किया, मैं राइट पे गया, अब मुझे इसको पहले पूरा प्रोसेस करना था। अब मुझे राइट पे प्रोसेस करना था, तो मैं राइट से सीधा सी पे आया। अब जैसे ही मैं सी पे पहुंचा, अब मुझे वो वाला रूल सारे फॉलो करने हैं कि आई नीड टू प्रोसेस लेफ़्ट एंड देन राइट। तो मैंने लेफ़्ट में एच को प्रोसेस कर दिया, फिर मैं वापस सी पे आया और मैंने देखा कि क्योंकि इसका लेफ़्ट पार्ट प्रोसेस हो चुका है, तो मेरे को राइट में जाना है। फिर मैं इधर आया तो मैंने देखा कि एम है, बट एम से पहले मुझे इसके लेफ़्ट को प्रोसेस करना है, इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं था, तो मैंने नहीं प्रोसेस किया। फिर उसके बाद मैंने इसके राइट को प्रोसेस करना था एम के, तो मैंने राइट को प्रोसेस कर दिया आई को। फिर मैंने एम को भी प्रोसेस कर दिया, क्योंकि इसका लेफ़्ट और राइट दोनों प्रोसेस हो गए। अब ये वाला पूरा प्रोसेस जब हो गया था, तो जब मैं सी पे आया तो लेफ़्ट सब ट्री भी प्रोसेस्ड है, प्रिंटेड है, और राइट सब ट्री भी प्रिंटेड है, तो मैंने सी को भी प्रिंट कर दिया। फिर जब मैं यहाँ से वापस गया, तो ये क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस हो चुका था, जब मैं यहाँ पर वापस पहुँचा तो मैंने ए को भी प्रोसेस कर दिया। फाइन, तो दिस इज़ हाउ माई पोस्ट ऑर्डर लुक्स लाइक। सो एज यू कैन सी दिस कि पोस्ट ऑर्डर में हमेशा रूट नोड लास्ट में आता है, और प्री ऑर्डर में हमेशा रूट नोड स्टार्टिंग में आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब एक पॉइंट है जो आपको बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। फाइन, तो अब मेरे हिसाब से तो आप इन ऑर्डर मतलब आप इजीली कर ही लेंगे, बट मैं इसका इन ऑर्डर भी एक बार कर देता हूँ।
फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो और क्वेश्चंस। वैसे तो सारे ही बहुत मतलब सबने बहुत करेक्टली आंसर कर दिया था, तो बट मैं बेसिकली स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे प्रोसेस एक्चुअल में होता है। वैसे जब आप पेपर में जाओगे, इन व्हेन यू हैव लाइक tried out so many questions, you'll not have to do it in this way, in the way that I am like trying to explain. फिर तो आप बहुत जल्दी जल्दी देख के ही बता सकते हो कि इसका लेफ़्ट चाइल्ड तो है नहीं, तो इसके लेफ़्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अप करूँ, तो अब मैं बहुत ही जल्दी से आपको करके दिखाऊंगा कि मतलब ज़्यादा एफर्ट्स आपको खुद ही नहीं लगेंगे। तो आई विल राइट डाउन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ओवर हेयर। फाइन। सो नाउ आई वॉज एट ए। सो इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले आप लेफ़्ट प्रोसेस कर दो, फिर आप नोट प्रोसेस कर दो, फिर उसके बाद राइट। तो पहले जैसे ही मैं ए पे था, मेरे को ए नहीं प्रोसेस करना था, मेरे को पहले उसका लेफ़्ट पार्ट प्रोसेस करना था। फिर मैं डी पे आया, मैं डी नहीं प्रोसेस कर सकता था, मेरे को लेफ़्ट करना था। जी पे आया, जी भी नहीं प्रोसेस कर सकता था क्योंकि मुझे लेफ़्ट पार्ट प्रोसेस करना था। एफ़ पे आया तो मैंने उसको प्रोसेस कर दिया। फिर जी पे आया तो जी प्रोसेस कर दिया, उसका राइट में कुछ था ही नहीं तो मैं राइट में गया ही नहीं। फिर वापस डी पे आया तो मैंने डी प्रोसेस कर दिया। फिर वापस मुझे अब बी जो है मतलब जो राइट पार्ट था उसको प्रोसेस करना था, तो राइट पे मैं चला गया और मैंने उसको प्रोसेस कर दिया। फिर उसके बाद मैं वापस चला गया। जैसे ही मैं वापस पहुंचा, लेफ़्ट ट्री को प्रोसेस करके मैंने ए को प्रोसेस कर दिया। फाइन। फिर ए को प्रोसेस करने के बाद मैं राइट पे गया। फाइन। तो जैसे ही मैं राइट पे गया, राइट पे जब मैं पहुंचा, मतलब जब मैं सी पे पहुंचा, जैसे ही मैं सी पे पहुंचा तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू प्रोसेस इट्स लेफ़्ट सब ट्री, राइट। क्योंकि मैं सीधा सी को नहीं प्रोसेस कर सकता, हमेशा इन ऑर्डर में पहले मुझे लेफ़्ट को प्रोसेस करना होता। तो मैंने एच को प्रोसेस किया, मैं मतलब लेफ़्ट पे गया, एच ही था, उसका लेफ़्ट कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने एच को प्रोसेस कर दिया। फिर उसके बाद क्योंकि लेफ़्ट प्रोसेस हो चुका है, मैंने सी को भी प्रोसेस कर दिया। फिर उसके बाद मैं राइट में चला गया। फिर जैसे मैं मतलब राइट में गया तो मैं एम पे पहुंचा। अब एम में को मैं सीधा नहीं प्रोसेस कर सकता था, मेरे को उसका लेफ़्ट को प्रोसेस करना था, बट लेफ़्ट में कुछ था ही नहीं तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और फिर मैं एम को प्रोसेस अब कर सकता हूँ क्योंकि उसके लेफ़्ट जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस अपने आप ही हुआ है क्योंकि कुछ है ही नहीं। फिर मैंने एम को प्रोसेस किया और मैं आई पे आ गया और आई को मैंने प्रोसेस कर दिया। सो दिस इज़ हाउ माई इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वुड लुक लाइक। फाइन। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी ईजी। आपको मतलब अगर आपको एक भी ट्रैवर्सल ढंग से समझ में आ रहा है तो आप किसी भी तरीके का ट्रैवर्सल जो है वो खुद से बना के भी मतलब कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको NLR ही आएगा, मे बी आपको पेपर में बोल दे कि वो RLN वे में आप करो। ऑल्दो कभी पेपर में नहीं बोलते, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि NLR कि अगर प्री ऑर्डर में NLR है तो उसको मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ, और पोस्ट ऑर्डर में अगर LRN है तो मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ, और अगर इन ऑर्डर में LNR है तो मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ। तो अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी अलग अलग मतलब ट्रैवर्सल को बहुत ईजीली उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। फाइन। सो नाउ आई विल फाइंड आउट द आंसर टू लेवल ऑर्डर। व्हाट इज़ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। और लेवल ऑर्डर तो ट्रैवर्सल बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा। सॉरी। ओके। सो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैं क्या करता हूँ कि मैं जितने भी मेरे एक लेवल पे होते हैं मैं उनको सबको प्रिंट कर देता हूँ। सो आई विल बी लाइक राइटिंग डाउन द आउटपुट ऑफ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ओवर हेयर। सो ए इस लेवल पे जितने भी थे मैंने सारे प्रोसेस कर दिए। तो ए आया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ए आया तो मैंने उसको प्रोसेस कर दिया। फिर
डी और सी आए, मैंने उनको प्रोसेस कर दिया। फिर जी बी एच एम आए तो मैंने उनको प्रोसेस कर दिया, जी बी एच एम। फिर एफ और आई आया तो उनको प्रोसेस कर दिया। सो दिस इज़ हाउ आई डू माई लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। फाइन। सो इसी वे में मतलब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं। नाउ वन थिंग विच यू मस्ट बी नोइंग इज़ कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या फिर बीएफएस करने के लिए क्यू का यूज़ होता है, और पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, मतलब ये डीएफएस रिकर्जन्स के लिए स्टैक का यूज़ होता है। स्टैक या फिर आप रिकर्जन भी यूज़ कर सकते हैं इन 3 ट्रैवर्सल्स के लिए जो कि डीएफएस बेस्ड होती है, और जो बीएफएस बेस्ड होती है उनको मैं क्यू की हेल्प से करता हूँ। फाइन। सो आफ्टर डूइंग ट्रैवर्सल्स आई विल नाउ बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट यूनिक बाइनरी ट्री। कि अगर मेरे को 2 ट्रैवर्सल्स दे रखी है तो मैं उससे एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर लूँ। तो अभी तो हमने यही देखा था कि अगर मुझे एक बाइनरी ट्री दे रखा है तो उससे मैं कैसे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकता हूँ। बट अगर मुझे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा है तो क्या मैं उससे यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? तो कैसे करूँ? अगर मुझे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा है तो मैं उससे यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे पोस्ट और लेट्स से कि लेवल ऑर्डर दे रखा है तब भी मैं नहीं कर सकता। मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आप मुझे प्री ऑर्डर दे दीजिए या फिर पोस्ट ऑर्डर दे दीजिए, तो ही मैं सिर्फ उसी केस में मैं आपको यूनिक बाइनरी ट्री वापस कंस्ट्रक्ट करके दे सकता हूँ। अगर आप मुझे इन ऑर्डर के साथ लेवल ऑर्डर भी दे देंगे ना, तब भी मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता यूनिक बाइनरी ट्री। फाइन। तो ये आपको मतलब माइंड में रखना है, जो कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ प्री ऑर्डर प्लस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे अगर दे रखा होगा तो ही मैं यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, वरना नहीं। और अगर मुझे पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रखा होगा तभी मैं यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। फाइन। तो मुझे इतना तो पता है कि प्री ऑर्डर जो है वो मेरा होता है नोड ही नोड, देन लेफ्ट एंड राइट, और जो इन ऑर्डर होता है वो होता है पहले लेफ्ट देन नोड देन राइट। फाइन। तो ये मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा कि मेरी रूट नोड कौन सी है। किसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? प्री की हेल्प से, प्री ऑर्डर की हेल्प से। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे ये दे रखा है। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ कि आई विल फाइंड आउट कि इसका प्री ऑर्डर कौन सा है, मतलब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में मतलब रूट नोड कौन सी है। मुझे पता लग गया कि के रूट नोड है। फाइन। तो के का मैंने एक रूट नोड बना दिया। उसके बाद मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में गया, क्योंकि के मेरी नोड है और उसके लेफ़्ट में सारे लेफ़्ट सब ट्री के पार्ट होते हैं, लेफ़्ट सब ट्री के नोड्स होते हैं, और उसके राइट में सारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैं कह रहा हूँ कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लेफ़्ट में जितने भी नोड्स होते हैं वो लेफ़्ट सब ट्री के पार्ट होते हैं, और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो भी राइट में होते हैं उस नोड के, वो राइट सब ट्री के पार्ट होते हैं। तो इसलिए एन और एल इसके लेफ़्ट सब ट्री के पार्ट हो जाएंगे, और पी आर एम एस क्यू टी वो इसके राइट सब ट्री के पार्ट हो जाएंगे। फाइन। तो मैंने नेक्स्ट नोड फाइंड आउट करी। नेक्स्ट नोड इज़ जो रूट नोड टाइप्स हैं वो है एल। तो मैंने यही किया, मैंने एल को उठा के रूट नोड बना दिया लेफ़्ट सब ट्री की। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि एन जो बचा हुआ था एन यहाँ पर, वो कहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं इन ऑर्डर में वापस जाऊँगा और मैं देखूँगा कि एल के लेफ़्ट में है एन या राइट में है।
एल के लेफ्ट में है एन, राइट, एल के लेफ्ट में है एन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। फाइन, तो ये वाला मेरा ट्री कंप्लीट हो गया। सो मैंने एन भी प्रोसेस कर ही दिया है। तो मैं एक एक करके जितने भी प्री ऑर्डर के अंदर नोड्स होंगे उनको मतलब प्रोसेस करता जाऊँगा। अब मुझे एम को प्रोसेस करना है। एम को मैं कैसे प्रोसेस करूँगा, मैंने एम को यहाँ पर मैं एम को मैं रूट नोड बना दूंगा और इन ऑर्डर की हेल्प से मैं पता लगा लूँगा कि उसके लेफ़्ट में कौन कौन से नोड्स जाने चाहिए और उसके राइट में कौन कौन से। तो एम के लेफ़्ट में जाने चाहिए पी और आर, और एम के राइट में जाने चाहिए एस, क्यू और टी। फाइन, तो मैंने वही किया। फाइन, सो नाउ आफ्टर दिस अब मैंने नेक्स्ट को प्रोसेस किया। नेक्स्ट इज़ पी। तो मैंने पी को प्रोसेस किया, तो मैंने मतलब आर को हटा दिया यहाँ से और पी को प्रोसेस कर दिया, और आर जो था वो उसके राइट में था, तो मैंने ऐसे कर दिया। फिर पी भी प्रोसेस हो गया मेरा, आर भी प्रोसेस हो गया। नाउ आई हैव टू प्रोसेस क्यू। तो क्यू को मैं कैसे प्रोसेस करूँगा, एस और टी हटा दूँगा और क्यू ही मेरा रूट नोड टाइप्स बन जाएगा, मतलब कि राइट सब ट्री के अंदर। और एस जो है वो क्यू के लेफ़्ट में था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, तो मैं एस को लेफ़्ट में रखूँगा और टी को मैं राइट में रखूँगा। सो नाउ आई हैव बीन एबल टू कंस्ट्रक्ट माई binary tree out of the pre-order and in-order traversal. Now if I have to note down all the steps, then that would be one by one कि आप एक एक करके सारे लेफ्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल्स के एक एक करके आप नोड उठाइए, एक एक करके आप नोड प्रोसेस कीजिए। जैसे मैंने के पहले प्रोसेस किया था, फिर एल। तो जैसे ही मैंने के प्रोसेस किया तो मैंने क्या किया कि मैं फिर इन ऑर्डर में गया और मैंने देखा कि के लेफ़्ट में कौन से हैं और राइट में कौन से। तो वही मैंने लेफ़्ट में रख दिए और राइट में रख दिए। फिर मेरे को एल मिला तो एल को मैंने बना दिया, फिर क्योंकि एन जो है वो उस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैं गया और मैंने देखा कि एन जो है वो इसके लेफ़्ट में है, तो मैंने उसको लेफ़्ट में भेज दिया। फाइन, सो दिस इज़ हाउ आई लाइक डू दिस। फिर मैंने को एम प्रोसेस करना था, तो एम कैसे मैंने प्रोसेस किया, मैंने एम तो एक रूट नोड टाइप बना दिया, मतलब एक सिंगल नोड बना दिया, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसके लेफ़्ट में क्या क्या जाना चाहिए और इसके राइट में क्या क्या जाना चाहिए। तो वो मैंने कैसे पता लगाया, इन ऑर्डर से, कि पी और आर इसके लेफ़्ट में जाना चाहिए और एस क्यू टी इसके राइट में जाना चाहिए। तो मैं वही करता गया और करते करते मेरा मतलब बन गया ये ट्री। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी इजी, बट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारी पूछा जाता है। फाइन, तो अभी मतलब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड, बट अभी हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल्स का। अब जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में अभी हम क्या कर रहे थे कि हमें पता था कि प्री ऑर्डर के अंदर पहले नोड होता है फिर लेफ़्ट और राइट होता है, बट पोस्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि पहले लेफ़्ट फिर राइट फिर नोड होता है। तो जो नोड होता है वो एकदम लास्ट में होता है, तो इसलिए हम सेम प्रोसीजर रखेंगे बट लास्ट नोड से हम प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो मैंने वही किया, मैंने लास्ट नोड से प्रोसेस किया, लास्ट नोड को रूट नोड बनाया, फिर देखा कि ए और एफ इसके लेफ़्ट में और सी डी जी इसके राइट में है, तो मैंने यही किया, ए एफ सी डी जी ई। फाइन, फिर मैंने नेक्स्ट नोड को प्रोसेस किया जो कि था डी। जब मैंने डी को प्रोसेस किया तो मैंने देखा कि सी इसके लेफ़्ट में जाना चाहिए और जी और ई इसके राइट में जाना चाहिए। फाइन, फिर ई को प्रोसेस किया। ई को जैसे ही मैंने प्रोसेस किया तो मुझे पता लगा कि इसके राइट में तो कुछ नहीं होगा बट इसके लेफ़्ट में जी चला जाएगा। ये मैं कैसे पता लगा रहा हूँ, इन ऑर्डर में देख के कि ई के लेफ़्ट में जी था और ई के राइट में कुछ भी नहीं था। फाइन,
अब आफ्टर प्रोसेसिंग ई आई प्रोसेस जी। फाइन, तो मैंने जी प्रोसेस किया, फिर उसके बाद मतलब वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड ही है क्योंकि वो अकेला ही है अभी। अब उसके बाद मैंने सी प्रोसेस किया, सी भी अकेला ही है तो आई नीड नॉट प्रोसेस एनीथिंग। उसके बाद आई प्रोसेस्ड एफ़, तो जैसे ही मैंने एफ़ प्रोसेस किया, एफ़ को मैंने अकेला कर दिया और मैंने एफ़ के लेफ़्ट में जो था ए ही था और उसके जो भी राइट में था, राइट में कोई भी नहीं बचा था तो मैंने उसके राइट में कोई भी नहीं डाला। देन आई प्रोसेस्ड ए। फाइन, सो दिस इज़ हाउ माई बाइनरी ट्री लुक्स लाइक नाउ। सो अगर मुझे पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रखा हो तो दिस इज़ हाउ आई कंस्ट्रक्ट माई यूनिक बाइनरी ट्री। फाइन, सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बस सेम प्रोसीजर है दोनों के अंदर, बस प्री ऑर्डर में हम स्टार्टिंग से प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं हर नोड को, और पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम एंड से प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं हर नोड को, क्योंकि हमेशा जो रूट होता है वो लास्ट में आता है पोस्ट ऑर्डर के केस में, और प्री ऑर्डर में वो स्टार्टिंग में आ जाता है। फाइन, सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट बाइनरी ट्रीज आई वुड लाइक टू डिस्कस अ बिट अबाउट बाइनरी सर्च ट्रीज ऑल्सो, कि बाइनरी सर्च ट्रीज आए क्यों थे। फाइन, तो पहले तो बाइनरी सर्च ट्रीज आए इसलिए थे क्योंकि बाइनरी ट्रीज में जो सर्चिंग का टाइम था वो बहुत ज़्यादा था, ऑर्डर ऑफ एन। मतलब आपको हर एक नोड को ट्रैवर्स करके देखना पड़ता था कि उस पूरे ट्री के अंदर वो वाली नोड है कि नहीं। तो अगर मैं ये वाली नोड की बात करूँ और अगर मुझे सर्च करना है लेट्स से डी, तो मैं क्या करूँगा कि सारी नोड्स को चेक करूँगा, डी है, डी है, डी है, डी है, मिल गया डी, ऐसे करता था। मतलब कोई भी ट्रैवर्सर मैं ले लूँगा, ईदर प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, कोई भी मैं ट्रैवर्सर ले लूँगा और मैं ट्रैवर्स करता जाऊँगा, और जब भी मेरे को वो वाला नोड मिल गया तो मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू सर्चिंग इन केस ऑफ बाइनरी ट्रीज, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी costlier operation and will take generally order of n. Fine. So in order to reduce this particular time complexity, we actually introduced binary search trees. So binary trees में okay, yes, तो बाइनरी ट्रीज में एवरेज केस, बेस्ट केस, सब केसेस में ऑर्डर ऑफ एन ही होता था। बट बाइनरी सर्च ट्रीज में एक मतलब अभी मैं कंडीशन बताता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्रीज होते क्या हैं और उसमें कैसे मतलब फ़ायदा हुआ हमें सर्चिंग ऑपरेशन को ईज डाउन करने में। और उससे पहले मैं सीधा रिज़ल्ट बताऊँगा कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्चिंग का जो ऑपरेशन था उसके बेस्ट केस में तो हमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ लॉग एन लगने लगा टाइम, और एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लगा। बट इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो विच वी विल एक्चुअली डिस्कस, हमें अभी भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा था। सो इसको भी हटाने के लिए हमारे नेक्स्ट आते हैं ट्रीज़ जो कि होते हैं हाइट बैलेंस ट्रीज़। देयर आर मैनी हाइट बैलेंस ट्रीज़ पॉसिबल. One such height balance tree is AVL tree, which is actually in our syllabus. Apart from this, there are many height balance trees like red black trees and B trees and many more, but in our syllabus there is only one height balance tree which is AVL tree. तो वो AVL tree क्या करता है, जो कि height balance tree होता है, वो worst case complexity को भी order of log n कर देता है, इसलिए हम height balance trees को भी पढ़ते हैं। बट अभी तो हम बाइनरी सर्च ट्रीज ही पढ़ेंगे, इसलिए हमें ये 3 ऑपरेशंस के मतलब सर्चिंग ये कैसे बेटर करता है और क्या होते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन, ओके। सो बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सो दोज 2 कॉन्स्टेंट्स आर all the keys or all the nodes which are
less than the root node actually goes to the left subtree, and all the nodes whose value is greater than the node, it goes to the right subtree. Fine. So all the nodes whose value is greater than the value of the node, then it will go to the right subtree, और अगर उस नोड की वैल्यू कम है तो वो लेफ्ट सबट्री में जाएगा. सो लेट्स से इफ आई हैव टू इंसर्ट, लेट्स से कि मेरे पास 11, 6, 9, लेट्स से 2, फिर 10 एंड 8, ये सारी नोड्स थी और इसको मुझे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना था. तो पहले तो मेरा खाली ट्री था तो मैंने 11 तो ऐसे का ऐसे इंसर्ट कर दिया. देन जब अगर मुझे 6 इंसर्ट करना था बाइनरी सर्च ट्री में, तो आई विल मेक श्योर, सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई विल कंपेयर 6 विद 11. नाउ बिकॉज आई नो कि 6 कम है, तो आई विल go to the left and I'll insert 6 over there. Fine. So now I'll do the insertion for 9. So how do I insert 9? I compare 9 with 11. Now because 9 is actually less than 11, so we actually go to the left subtree. Fine. So now after going to the 6, now we compare 9 with 6. Now 6 is actually less than 9, or if I have to say कि 9 की वैल्यू बड़ी है 6 से, तो 9 जो है इसके राइट में चले जाएगा. सो नाउ यहाँ पर स्पेस खाली था तो उस वहाँ पर वो मेरा इंसर्शन हो गया. नाउ आई हैव टू इंसर्ट 2. सो हाउ डू आई इंसर्ट 2? 2 इंसर्ट करने के लिए मैंने ये देखा कि वो 11 से कम है तो मैं लेफ़्ट में चला गया. अब 2 अभी 6 से भी कम है तो मैं और लेफ़्ट में चला गया. अब मुझे स्पेस खाली मिला तो मैंने 2 इंसर्ट कर दिया. नाउ आई हैव टू इंसर्ट 10. 11 से कम है तो मैं लेफ़्ट में गया. 6 से ज़्यादा है तो मैं राइट में गया. 9 से भी ज़्यादा है तो मैं और राइट में गया, और यहाँ पर स्पेस मिला तो मैंने इंसर्ट कर दिया. अब मुझे 8 इंसर्ट करना था. फाइन. तो 8 11 से कम है तो लेफ़्ट में गया. 8 6 से ज़्यादा है तो मैं राइट में गया. अब 8 जो है वो 9 से तो कम है ना, तो इसे मुझे लेफ़्ट में गया. यहाँ पर मुझे स्पेस खाली मिला तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. सो दिस इज़ हाउ आई डू इंसर्शन. मतलब जो भी नोड है उसको मैं कंपेयर करता जाऊँगा और जहाँ पर मुझे स्पेस खाली मिलेगा वहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूँगा. बट ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब कंस्ट्रेंट जो है ये हमें सर्चिंग में हेल्प करता है. लेट्स से कि इफ़ आई नाउ हैव टू सर्च फॉर 2, सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट, पहले मैं 11 से कंपैरिजन करूँगा. मुझे पता लग जाएगा कि 2 जो है वो 11 से कम है, तो मुझे इसके राइट सब ट्री में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है. फिर 6 पे मैं जाऊंगा तो 6 पे मुझे पता लगेगा कि 2 जो है वो कम है, तो उसके लेफ़्ट सब ट्री में ही होगा, तो मैं राइट सब ट्री में मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है. तो बेसिकली आई एम प्रूनिंग हाफ ऑफ द ट्री, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्री एट एवरी स्टेप. So I'm basically pruning almost half of the tree at every step. Fine. So इसी की वजह से मेरा जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो बेटर होता जाता है. मतलब ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस्ट केस में पहुंच जाता है. बट वो वर्स्ट केस कब होगा, जब मेरा स्क्यू ट्रीज़ हो. अगर मेरे स्क्यू ट्रीज़ है तो बिल्कुल भी प्रूनिंग हो ही नहीं पाएगी. आई विल शो यू हाउ. अगर वो मेरा सिर्फ स्क्यू ट्रीज़ है लाइक दिस, तो 1 2 3 4, तो जब मैंने लेट्स से कि इफ़ आई हैड टू सर्च फॉर 3, तो मैं 1 पे गया, तो 1 से तो इसके तो लेफ़्ट में कुछ है ही नहीं, तो ट्री तो प्रून हुआ ही नहीं ना लेफ़्ट वाला. फिर मैं 1 से गया, मुझे पता था कि 3 ज़्यादा है तो उसके राइट सब ट्री में होगा, तो मैं राइट पे चला गया. 2 पे आ गया, फिर मुझे पता लगा कि 3 जो है वो 2 से बड़ा ही है तो राइट में ही होगा. बट इसके लेफ़्ट में तो कुछ है ही नहीं ना, तो कुछ कभी भी प्रून ही नहीं हो रहा. मतलब कि कोई भी ट्री जो है वो कम हो ही नहीं रहा जिसको मेरे को सर्च करना था. इसलिए कुछ भी मेरे को हेल्प नहीं हुई इस केस में, जब मेरे पास स्क्यू ट्री है. स्क्यू ट्री के केस में
मेरी जो सर्चिंग ऑपरेशन होता है, इवन इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n. बट इफ़ आई एम हैविंग अदर ट्रीज तो वो एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ log n लगता है फॉर सर्चिंग ऑपरेशन इन बाइनरी सर्च ट्री. बट अगर मेरे पास क्यू ट्री है तो बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ n लेता है, विच इज़ एक्चुअली द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज. सो दिस इज़ एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको नोट करना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री का सर्चिंग का वर्स्ट केस कौन सा है, जब वो स्क्यू ट्रीज हो. फाइन. सो ये मतलब ये मैंने प्रूव करा कि सर्चिंग कैसे बेटर होती है बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट बाइनरी ट्रीज आर एक्चुअली. फाइन. सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट a few properties of binary search trees. So the properties of binary search trees are कि अगर मुझे कोई भी binary search tree दिया हुआ है और मैं उसका अगर in order traversal करूँगा तो मुझे हमेशा ascending order मिलेगा. So let's say कि अगर मुझे कुछ ऐसा सा binary search tree मिला हुआ है 10, 12, 5, 7, 8, 9, ऐसा सा कुछ मतलब मेरा बाइनरी सर्च ट्री है. फाइन. अब अगर मैं इसका वो करूँगा ना, दिस इज़ नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री. यार कपिल क्या किया तुमने? सॉरी, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री. Got lost a bit. So over here I need to have less only, right? Or here I can have 15, I can have 11, I can have 13 over here. Fine. So this is my binary search tree. Now if I'll do in order traversal of this, if I'll do in order traversal of this particular binary search tree, तो मुझे क्या मिलेगा? 4, 5, 10, 11, 12, 13. तो हमेशा मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड लिस्ट ही मिलेगी. फाइन. तो हमेशा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स असेंडिंग ऑर्डर. सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स अस असेंडिंग ऑर्डर. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी ही है. And if someone asks you कि what is the total number of binary search trees possible using n nodes or n labeled nodes or n unlabeled nodes, कुछ भी हो, the total number of binary search trees possible using n nodes. अगर binary search tree है तो उसमें सिर्फ Catalan number of binary search trees possible हो सकते हैं. And what is Catalan number? 2n cn upon n plus 1. अगर मेरे से कोई पूछता कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज पॉसिबल यूजिंग n लेबल्ड नोड्स, तो मुझे कैटलान नंबर को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता. और अगर कोई मेरे से पूछता कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज पॉसिबल यूजिंग n अनलेबल्ड नोड्स, तो उस केस में वो कैटलान नंबर ही होता है, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, राइट. बट अगर कहीं पर भी बाइनरी सर्च ट्रीज आ गया तो उसमें तो मतलब कैटलान नंबर ही है. क्यों? क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर के लिए, लेट्स से कि जैसे मेरे पास 3 नोड्स थी तो एक स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल है. फाइन. 5 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, राइट, जो हमने पढ़े थे. 1, 2, 3, 4, 5. एक, दो, 3, 4, 5. अब हर एक स्ट्रक्चर के लिए देर इज़ ओनली, अब मेरे पास अगर 1, 2 और 3 नोड है तो इन 1, 2 और 3 को मैं रैंडमली नहीं पुट कर सकता कि मैं यहाँ पर चाहे 1 कर दूँ, चाहे 2 कर दूँ, चाहे 3 कर दूँ. सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है जिसमें मैं इन नोड्स को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ. कैसे? मैं यहाँ पर पहले 3 लिखूँगा, फिर 2 लिखूँगा, और सॉरी मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, यहाँ पर 2 लिखूँगा और यहाँ पर 3 लिखूँगा. मैं यहाँ पर 3, 2, 1 नहीं कर सकता क्योंकि दैट वुड वायलेट
my binary search tree property, right? So there is actually only one way to, अब कि मैं मतलब मेरे एक स्ट्रक्चर से सिर्फ एक ही बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल से नहीं कर सकता. इसलिए द नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल यूजिंग एन लेबल्ड नोड्स और एन अनलेबल्ड नोड्स और एनीथिंग, अगर बाइनरी सर्च ट्रीज बोला है तो इट वुड बी जस्ट कैटलान नंबर, एंड कैटलान नंबर इज 2n cn upon n+1. Fine. Fine. So this is how we do this. Now I'll rub this off and I'll discuss the next point. Fine. So in this particular case, this is actually a very okay, so this is actually a very like easy thing. आपको ये तो पता है कि अगर आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए, उसके साथ साथ पोस्ट या फिर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए, राइट? अब क्या होता है कि अगर मुझे BST दे रखा है, मुझे ये दिया हुआ था कि मैंने BST बना रखा है इन नोड्स का 1, 2 और 3 का, 1, 2, 3, 4 का, तो मुझे इसका बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये तो पता लग ही सकता है कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर. इन सारे नोड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, और वही इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा. तो एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन पेपर में आपको वो इन ऑर्डर नहीं देंगे. अगर वो बोल रहे होंगे ना कि कंस्ट्रक्ट द यूनिक बाइनरी सर्च ट्री, तो वो आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं देंगे, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तो आप खुद से ही निकाल सकते हो. कैसे? बाय सॉर्टिंग देम बाय सॉर्टिंग द नोड्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो वो उसके साथ आपको प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दे देंगे. फाइन. फिर उससे आपको एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना होगा. सो इफ़ आई हैव टू टेक एन एग्जाम्पल, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं है बट मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि लेट्स से इफ़ आई एम गिवन दिस कि 11, 13, 2, 9, 8, these are my nodes. This is the pre-order traversal of my BST. Now they are saying कि this is the pre-order traversal of my BST. So now you construct the unique BST out of this. तो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगा? मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख दूँगा. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो. 2, 8, 9, 11, 13. आफ्टर आई हैव सॉर्टेड देम इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ अब मुझे पूरा प्रोसीजर तो पता ही है, जो कि बहुत ही ईजी है. क्या है वो पूरा प्रोसीजर? कि आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लीजिए और आप स्टार्टिंग से प्रोसेस करना स्टार्ट कर दीजिए. तो पहला है 11, तो मैंने 11 को प्रोसेस कर दिया, और 11 के लेफ़्ट में है 2, 8, 9 और राइट में है 13, तो मैंने यही किया 2, 8, 9 और 13. फाइन. फिर उसके बाद मैंने 13 प्रोसेस किया, तो 13 तो ऑलरेडी अकेला ही है, तो उसको प्रोसेस करने की क्या ही ज़रूरत है. फिर मैंने 2 प्रोसेस किया. 2 जैसे ही प्रोसेस किया, 2 को मैंने अकेला कर दिया और देखा कि उसके राइट में 8 और 9 होने चाहिए. फिर मैंने 9 प्रोसेस किया. फाइन. तो फिर मैंने 9 प्रोसेस किया, तो मैंने उसको अकेला कर दिया, और फिर मैंने देखा कि 8 उसके लेफ़्ट में जाना चाहिए या राइट में. लेफ़्ट में जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि तभी BST का वो भी जो बेसिक रूल्स है वो फॉलो भी हो रहे हैं, और मैंने BST उससे कंस्ट्रक्ट भी कर लिया प्री ऑर्डर से. और यहीं अगर मुझे पोस्ट ऑर्डर दे रखा होता तो इन ऑर्डर तो सेम ही आता, यही आता है इन ऑर्डर, बट मुझे वो लास्ट से प्रोसेस करना स्टार्ट करना होता. फाइन. जो कि हमने प्रोसीजर देखा भी है और जो कि ईजी भी है, राइट? तो probably we would end this particular session over here. तो basically what like I am trying to do is that I am trying to give you as many results जो कि जिनके basis पे exact same questions बने हुए हैं. मतलब डिट्टो कॉपी अभी अगर मैं दिखाऊंगा, majorly 80% of the questions are based on these results only.
तो इफ़ यू आर वेरी वेल वर्स विद दीज रिजल्ट्स ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व 80% ऑफ द क्वेश्चन. सो दैट इज़ वट माई मोटिव इज़ कि आपको वो वाले सारे रिजल्ट्स में मतलब आपको रेडली दे दूँ. 8 राइट में नहीं आएगा. ओके सॉरी, आई माइट हैव मिस्ड. ओके सो 8 एक्चुअली लेफ़्ट में ही आएगा क्योंकि वो 9 से छोटा है ना, और BST में जो छोटे होते हैं वो लेफ़्ट में जाते हैं, राइट. और अगर आप इन ऑर्डर में भी देखें तो 8 जो है वो लेफ़्ट में है राइट के. तो 8 जो है वो लेफ़्ट में ही रहेगा. फाइन. सो okay, fine. So I'll probably like wrap this particular session, and in the next session we'll just move over to this particular question, and फिर हम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करके जल्दी से AVL पे मूव होंगे. और कल हमारा मेनली मतलब जो टारगेट रहेगा वो AVL और हीप्स को कंप्लीट करना रहेगा, और हम जो भी बाइनरी सर्च ट्रीज और बाइनरी ट्रीज के क्वेश्चंस हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे. फाइन. So that would be it for this particular session, and I'll actually meet you guys in the next session. So thank you so much for joining in, and I'll catch you tomorrow. Okay, bye bye.